Top Lashkar operative Saifullah has been killed in Pakistan by unknown gunmen. He used to work for Lashkar-e-Taiba from Nepal earlier and had recently shifted to Sindh area. He was responsible for carrying out an attack on the RSS headquarters in Nagpur in 2006. He was also involved in an attack on the CRPF camp in Rampur in 2001 and an attack on the Indian Science Institute in Bangalore in 2005. He was operating from the Sindh province of Pakistan currently, and he has been shot down by unidentified gunmen. Joining us now are India Today's Shreya Chatterjee and Arvind Ojha. Arvind, let me begin with you. ये जो आतंकी है जिसे मार गिराया गया है, इसके बारे में क्या जानकारी है? कौन था, कितना बड़ा ये ऑपरेटिव था लश्कर-ए-तैयबा का? देखिए अंजलि, ये काफी बड़ा लश्कर-ए-तोयबा का ऑपरेटिव था और लश्कर-ए-तोयबा हाफिज सईद ने खुद और आईएसआई ने इसे नेपाल में शिफ्ट करवाया था एक प्लान के तहत। नेपाल में ये विनोद के नाम से ऑपरेट कर रहा था और लगातार नेपाल में रहकर ये भारत में नौजवानों का ब्रेन वॉश करता था, लश्कर के लिए उनको रिक्रूट करता था। और भारत में 3 ऐसे बड़े हमले जिनकी जानकारी सभी को है। 2006 में आरएसएस नागपुर मुख्यालय पर आतंकवादी हमला हुआ था। 2005 में उत्तर प्रदेश के रामपुर में सीआरपीएफ कैंप पे हमला हुआ था जिसमें हमारे कई जवान वो शहीद हुए थे, और बेंगलोर में एक चर्चित आतंकवादी हमला हुआ था। इन 3 बम धमाकों की साजिश इसने नेपाल में बैठकर रची थी और उसके अलावा भी कई बम धमाके, खासतौर से कश्मीर में कई आतंकवादी हमलों को इसने अंजाम दिलवाया था। जब जांच में भारतीय एजेंसियों को इसके नाम के बारे में जानकारी मिली, उसके बाद ये नेपाल से पाकिस्तान के सिंध प्रोविंस में शिफ्ट हो गया था और वहां से लगातार लश्कर-ए-तोयबा के बैनर तले भारत में लगातार आतंकवादी हमलों को ये अंजाम दिलवा रहा था। इसे कुछ देर पहले ही, तकरीबन आधे घंटे का वक्त हुआ होगा अंजलि, जब इसे मौत के घाट उतार दिया गया। इसकी पूरी डिटेल इंडिया टुडे के पास है। इसका ओरिजिनल जो नाम है वो है सैफुल्लाह खालिद, और ये जो ऑपरेट कर रहा था विनोद कुमार, मोहम्मद सलीम और इलियास, इसके कई नाम हैं। और ये इसको अगर जो जानकारी हमें अभी मिली है उसके मुताबिक इसको नेपाल में चीफ कमांडर बनाया गया था लश्कर-ए-तोयबा का, और वहां से लगातार ये रिक्रूटमेंट, उसके अलावा फाइनेंसिंग, उसके अलावा लॉजिक सपोर्ट देना, तो कुल मिलाकर पाकिस्तान से जो आतंकवादी भारत में हमलों को अंजाम देने के लिए आते थे वो नेपाल में रुकते थे। नेपाल में सैफुल्लाह खालिद उनको लॉजिस्टिक, फाइनेंशियल, तमाम ये सपोर्ट देता था। वो नेपाल के रास्ते भारत में आते थे और आतंकवादी हमलों को अंजाम देते थे। Right, Shreya, it seems extremely convenient, right now for the intelligence agencies of India that these Pakistani terrorists are falling like flies, and suddenly there are these unknown gunmen who are, executing these killings. A big relief for India, for sure. Well, Julie, definitely not the first time that we are seeing such a gunning down. Definitely not going to be the last. As my colleague Arvind Ojha was very well detailing the operations of this particular operative, who's a Lashkar-e-Taiba operative and also was working for the Jamaat-ud-Dawa wing, is what we do understand. He is in fact known to be Saifullah with multiple names. Thereby, he was going now by Vinod Kumar. He'd also married a Nepali woman. His name is Nagma Bano. And he was fully living with a cover there in the Nepal region and also operating from the Nepal-Indo border. His main role was recruitment. So clearly, this is a big success for India so far as that front is concerned. He was also raising fund collections. He was operating from the Mati-Badin area of the Sindh province in Pakistan. We already do know the current role he played in the 2006 RSS headquarters attack, the CRPF Rampur attack in 2001, and the ISC attack Bangalore in 2005. So clearly, this is something huge that is coming in, given that we will only further see similar such incidents coming out, because that has been the case in the past as well. Right. We'd like to bring this to the notice of our viewers. We are also showing the names of certain terrorists who have died, and it's a list of the people who were on India's most wanted list also. Now, these are
what seems to be that there are some sort of death squads that are haunting these terrorists, and bodies are continually piling up. Right now, 16 anti-India terrorists have been killed in the last 2 years in Pakistani territory. So a big mystery surrounds the killings of these terrorists. But these terrorists have been bleeding India. And these killings in turn are now bleeding Lashkar, Jaish and Hizbul and their operatives who have been actively targeting India. But as we know, these killings are executed by unknown gunmen. We do not know who these gunmen are, where they come from, and the agencies also do not have much clue about them. But these terrorists are dropping like flies. So Arvind Ojha, I'll go back across to him. Arvind, जो ये हम एक सीरीज दिखा रहे हैं, ये कुछ हम ग्राफिक्स के जरिए बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो 16 एंटी इंडिया टेररिस्ट मारे गए हैं पिछले 2 साल में, वो कहीं ना कहीं उन सबकी जो मौत हुई वो कुछ जिसे कह सकते हैं रहस्यमय तरीके से हुई है. पता नहीं चलता है कौन आता है, मार के चला जाता है और सब सिर्फ देखते रह जाते हैं. बिल्कुल, देखिए ये अननोन गनमैन है, इसका खौफ काफी ज्यादा है अंजलि पाकिस्तान में, और खास तौर से 2021 से शुरू करें तो 2021 में हाफिज सईद लाहौर में, जो इंडिया टुडे ने उसका हाइड आउट भी एक्सपोज किया था, हाफिज सईद के ठिकाने पर फिदायीन अटैक हुआ था. उसके बाद एक एक करके लश्कर ए तोयबा और जैश के वो आतंकवादी जो इंडिया से मोस्ट वांटेड हैं वो मार गिराए गए हैं. और अज्ञात हमलावर अननोन गनमैन आता है और वो उनको पाकिस्तान के अलग अलग इलाकों में गोली मार के उनकी हत्या कर देता है. सीरीज वाइज ऐसी किलिंग हुई है. और पाकिस्तान कुछ मौकों पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वहां के मिनिस्टर ये आरोप लगाते हैं कि इंडिया ऐसा करा रहा है, जो हमारी एजेंसी है रॉ ऐसा करा रही है, जबकि भारत हर फ्रंट पर साफ करता है कि भारत इस तरह की किसी भी एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग में उसका कभी रोल रहता नहीं है. ये भारत का स्टैंड नहीं है, ये साफ. वहीं जो डिफेंस एक्सपर्ट है वो बताते हैं क्योंकि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI, पाकिस्तान की आर्मी ने वहां इतनी अलग अलग आतंकवादी तंजीमें वो बना दी है कि अब उनके बीच ही लड़ाई चल रही है. बहरहाल हमारे लिए तो कम से कम राहत की बात है, इंडियन एजेंसी के लिए बड़े राहत की बात है कोई अननोन गनमैन वो आता है और लश्कर के वो बड़े बड़े आतंकवादी जो जम्मू कश्मीर में हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस पर अटैक कराते हैं, भारत में अलग अलग जगहों पर आतंकवादी हमले करवा चुके हैं, उनको पाकिस्तान में मौत के घाट उतार चुका है. कराची में हजला अदनान जो हाफिज सईद का बेहद करीबी था, 2023 में उसको मौत के घाट उतारा गया. उसके अलावा अभी अगर बात की जाए मार्च के एंड में अबू काताल जो हाफिज सईद का बेहद करीबी था, हमेशा उसके साथ घूमता था, उसको अननोन गनमैन ने मौत के घाट उतारा. तो इस तरह कम से कम 16 से 17 ऐसे नाम हैं अंजलि जो पाकिस्तान में मौजूद थे, जो इंडिया के मोस्ट वांटेड थे, जिन्हें अननोन गनमैन ने मौत के घाट उतारा. अंजलि, राइट, थैंक यू Arvind, and thank you Shreya for joining in. So clearly an unknown gunman, as they say, an invisible enemy right now stalking the Pakistani terrorists and the terrorists who have been targeting India.